السلام علیکم ناظرین، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا ایک اور شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان سید آصف اقبال حاضر خدمت۔ ناظرین، ہمیں امید واثق ہے کہ آپ صحت و سلامت ہوں گے۔ ناظرین، قدرت کی طرف سے بنی نوا انسان کو عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں اگر کوئی نعمت سر فہرست ہے تو وہ ہے ایک صحت مند جسم اور ایک صحت مند طرز زندگی۔ اور اس صحت مند جسم جیسی نعمت کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم اس جسم کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں، ہر وہ کام کریں اور ہر وہ طریقہ اپنائیں جس سے کہ ہم بیماریوں سے دور رہے اور یہ جسم ہمارا تندرست اور صحت مند رہے۔ ناظرین، اس جسم کی خوبی اور اس کا حسن یہ ہے کہ یہ بہت پیچیدہ ہے اور اس کا حسن اس کی پیچیدگی میں ہی پوشیدہ ہے۔ ہمارے جسم میں مختلف نظام ہیں، مختلف سسٹمز ہیں جو بیک وقت ایک کلوز کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں، ایک کلوز ربط میں کام کرتے ہیں، اور انہی اعضاء میں، انہی وائٹل آرگنز میں ایک عضو ہے، ایک آرگن ہے جسے ہم کڈنی کہتے ہیں یا گردہ کہتے ہیں۔ اس گردے کا ہماری جسم میں ایک بہت ہی غیر معمولی کام ہے اور اس کی حفاظت میں ہی ہمارے جسم کی صحت کا راز مضمر ہے۔ اس سے جڑے بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل میں روز افزوں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور ان مسائل سے نپٹنے کے لیے ہمارے ہاں ہماری تجربہ گاہوں میں تجربات بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں ہمارے اسپتالوں میں ان مسائل کے نپٹارے کے لیے علاج و معالجہ بھی دستیاب ہے۔ آج ہم گردوں سے متعلق مختلف مسائل کو زیر بحث لائیں گے۔ اس تجزیاتی پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے آج کے معزز مہمان۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد اشرف بٹ صاحب۔ آپ سورا سکمز میں شعبہ نیفرولوجی کے سربراہ ہیں، اور ان کی بائیں جانب تشریف فرما ہے محترم محمد اسلم صاحب۔ آپ ٹیکنیکل آفیسر ڈائلیسس سکم سورا میں مہوکار ہیں اس ٹائم۔ آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے بزی شیڈول میں ٹائم نکال کے ہمارے ناظرین کے روبرو آئے اور ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے تشریف فرما بیٹھ ہیں یہاں پہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں عرض کر رہا تھا چونکہ ایک ہمارا جو ہیومن باڈی ہے، انسانی جسم ہے، بہت پیچیدہ ہے اور اس میں بیک وقت بہت سارے جو سسٹمز ہیں وہ کلوز کوارڈینیشن میں کام کرتے ہیں، اور اس کلوز کوارڈینیشن میں گردہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے؟ کیا افادت ہے گردے کی؟ نہیں، جیسے سارے سسٹم اسی میں گردہ جو ہے اس کی تو بہت امپورٹنس۔ جی جی، میں بتاؤں امپورٹنس اس حساب سے دیکھا جاتا ہے کتنا خون دل سے کہاں جائے۔ 20% جو ہارٹ سے نکلتا ہے ایک جھٹکے میں خون، وہ کڈنیز میں جاتا ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کڈنیز کتنی امپورٹنٹ۔ الٹرا فلٹریشن۔ جی، تو کڈنیز کا مین جو میں بتاؤں کام کیا ہے، ایک تو ہے جو جسم میں ہمیں وہ گندا مواد یا ٹاکسک مٹیریل پیدا ہوتا ہے ڈائجیشن کے بعد، تو وہ تو وہیں سے نکلتا ہے، کڈنیز اس کو فلٹر کر کے نکالتے ہیں۔ اور ایک ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جسم کے لیے وہ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ دوسرا، ہماری جسم کا جو مین جو وزن میں ہے نا وہ فلوئڈ ہے۔ ہمارا اگر وزن ہے کسی کا 100 kg، اس میں تو 60 kg تو ہوں گے یہ پانی، تو وہ پانی کی بیلنس رکھنے کے لیے کڈنیز امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا، کسی خون بننے کے لیے، ہمارا کسی کو بولتے ہیں ہیموگلوبن کیا ہے، عام تو یہ ہے کہ یہ بونوں سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ بننے کے لیے کڈنیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک جز وہاں سے نکلتا ہے ایرتھروپوئٹن، سو اٹ از امپورٹنٹ۔ جو بلڈ پریشر ہے آدمی کا، جس سے کہ خون چلتا ہے نسوں میں تاکہ سارے خون ہر جگہ پہنچے، وہ بلڈ پریشر مینٹین کرنے کے لیے عام تو یہ روزانہ لوگوں کو پتہ ہے ہارٹ کا کام ہے، لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے کڈنیز کا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سے ایک نکلتا ہے جو رینین۔ تو یہ اجمالی طور پہ یہ دو چار جو ہم نے موٹا موٹے طریقے سے دیکھی کڈنیز کی فنکشن ہے۔ تو اگر آپ، چونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جو کام کے تقاضے ہیں وہ تو پیشنٹس کے ساتھ ہی علاج و معالجے میں آپ مہوکار ہیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو پچھلے 2-3 دہائیوں سے، ہم 30 ایئرس ڈاؤن دا لائن دیکھیں تو کتنا اضافہ ہو گیا ہے کڈنی ایلمنٹس میں، گردے کی بیماریوں میں؟ کڈنی ایلمنٹس میں ڈراسٹکلی اضافہ ہو گیا۔ جی جی جی، یہ دیکھا گیا کہ 30% انکریز ہو گیا ایک ڈیکیڈ میں ہی۔ جن کو CKD ہم بولتے ہیں ان پیشنٹس کو جن کو کڈنیز میں ڈیمیج ہوا ہے وچ از ناٹ ریکوریبل، مطلب جن کو کچھ ڈیمیج ہوا ایسے کر کے کہ وہ 3 مہینے سے وہ ڈیمیج چل رہا ہے۔ ہاں، ہم کیونکہ میں جسٹ مختصراً بتاؤں، ایک ڈیمیج ہوتا ہے جو ایکیوٹلی ہو گیا، وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ کسی کو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلڈ لاس ہو گیا، کڈنیز فیل ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے صاحب بیٹھے یہ بتائیں گے بعد میں، ان کو امیڈیٹلی ہم کڈنیز کو واپس لانے کے لیے کڈنیز کو سپورٹ دیتے ہیں، ڈائلسس دیتے ہیں، وہ واپس پھر کام کرتے ہیں، وہ آلموسٹ نارمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا پرماننٹ ڈیمیج جو CKD ہے وہ تو بہت بڑھ گیا،
وہ मैं बताऊं 8.5 करोड़ तकरीबन ये मतलब जो एक साल पहले रफ एस्टिमेट है 8.5 करोड़ के पेशेंट हैं दुनिया भर में. मतलब पर मिलियन अगर हम देखें CKD के पेशेंट वो होते हैं 850. आप खुद समझ लीजिए कि कितने ज्यादा ट्रेंड इज ऑन राइज. इट इज ऑन राइज इज बिकॉज ऑफ इसके कारण क्या है. नहीं वो हम इंशाल्लाह दूसरे सवाल में आपके पास आएंगे क्योंकि वो एक बड़ा वसी मौजू है कि किडनी एलिमेंट्स में कंट्रीब्यूट कौन से फैक्टर्स करते हैं. मैं असलम साहब की तरफ आता हूं. आप टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस सिक्किम सोरा में महविकार हैं. तो डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कि डायलिसिस भी एक तरीका है. जब किडनी जो है टर्मिनली इल हो जाए तो उसके बाद डायलिसिस का प्रोसीजर सामने आ जाता है. तो इजमाली तौर पे मोटे मोटे अल्फाज में अगर आपको नाजरीन को समझाना होगा कि डायलिसिस का अमल क्या है तो क्या बताएंगे आप? जी सब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो किडनीज है इनका कितना अहम रोल है. जी जी जी. तो जब ये काम करना बंद कर देती है चाहे आर्जी तौर पे बंद करें या दायमी तौर पे जैसे इन्होंने फरमाया कि क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है तो उसमें वो जो टॉक्सिक मटेरियल जो जिस्म में जमा हो जाता है तो उसके बहुत मुज़िर असरात होते हैं. जिस्म की बहुत सारी जो पूरी बॉडी है उसकी जो भी अज्जा हैं उन पर असर हो जाता है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको बाहर निकालना है. क्योंकि ये काम तो कुदरती तौर पर गुर्दा करता है. जब ये गुर्दा ही बैठ गया तो हमें किसी मसनूई तरीके से ये जो सारी जो ये फुजला है इसको बाहर निकालना है. तो इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका है उसको हम डायलिसिस बोलते हैं. तो डायलिसिस दो तरह की होते हैं. एक तो हम पेशेंट का ही जो अपना उसका पेरिटोनियम होता है वो यूज करते हैं. तो दूसरा होता है कि एक आर्टिफिशियल किडनी होती है उसके जरिए से हम. तो ये डायलिसिस का अमल जिस्म के बाहर ही होता है दोनों तरीकों से कि जिस्म के अंदर भी? एक जो पहला तरीका है जो अब ज्यादा तो नहीं किया जाता है उसमें अपने ही जिस्म का जो पेरिटोनियल वॉल है वो यूज किया जाता है. बेसिकली इसमें जो हमें ये होता है कि हमारा ये मकसद होता है कि जो ये खून है वो हम फिल्टर कर दें. इसमें से जो ये गंदा मवाद है वो करें. तो उसके लिए एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए. जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हम फिल्टर करते हैं तो ये गंदा मवाद बाहर निकल जाता है. तो उसमें पेरिटोनियल डायलिसिस में हम अपने जिस्म का ही पेरिटोनियल वॉल यूज करते हैं उसके लिए. नहीं तो जो दूसरा प्रोसीजर है हीमोडायलिसिस उसमें मसनूई एक मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं उसको डायलाइजर बोलते हैं. उसी के थ्रू इसको फिल्टर करके फिर खून साफ होके फिर वापस भेज देते हैं इसमें. ये जो डायलिसिस का ये है ये बहुत अब पुराना हो गया. ये भी प्रोग्राम बहुत ऑलमोस्ट ये पहली बार तो 1943 में स्टार्ट हो गया था. उसके बाद जो रेगुलर डायलिसिस का प्रोग्राम है इट हैज स्टार्टेड इन 1960. अच्छा. तो इतने जो आजकल जो डायलिसिस है वो बहुत एडवांस्ड है. वो तो प्रिमिटिव स्टेज में था फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट आ गई. वक्त गुजरने के साथ तरक्की होती है. तो आजकल तो ये आम एक चीज बन गई जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि किडनी डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो उसकी वजह से अब ये डायलिसिस की जरूरत भी ज्यादा पड़ने लगी. जी इस पे आ जाएंगे. इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है और कौन से चैलेंज आपके दरपेश हैं इस डायलिसिस के अमल को अपनाने के दौरान और उससे पहले भी उस पर सेर हासिल बहस होगी. मैं फिलहाल डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ. डॉक्टर साहब अब हम जिक्र कर रहे थे अभी कि जो किडनीज की एलिमेंट्स का ग्राफ है इट्स ऑन राइज ये बढ़ रहा है. तो बहसत मुआलिज बहसत माहिर तिब आप क्या कौन से फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं? क्यों हो गया ऐसा? मेन तो हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हो गया वो क्यों हो गया. उससे क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन काज है जिससे किडनीज ये CKD होता है परमानेंटली डैमेज. नंबर 1 इज डायबिटीज. अच्छा. ठीक है. नंबर 2 मतलब अगर हम देखते हैं 45 to 50% काज है यही डायबिटीज. कोई शुगर के मर्ज में मुब्तला हो तो उसको ज्यादा इन्वॉल्व होती हो उसकी हो जाती है ज्यादा. सेकंड इज ब्लड प्रेशर अगर इसका अनकंट्रोल है किसी का हाइपरटेंशन है वो सेकंड काज है. थर्ड काज है हम बोलते हैं वो एक क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. वो तो मान लीजिए एक किस्म की वो सूजन सी होती है किडनीज में तो उसके कारण फिर वो रहता है रेजिडुअल दे गेट किडनीज में डैमेज होता है वो है. लेकिन अगर हम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ही कंट्रोल करें तो 2/3 जो काजेज हैं CKD के वो यही दो करें. और मैं आपकी बात में ऐड करूंगा और डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर ये दोनों अमराज जो हमारी लाइफस्टाइल्स के रिलेटेड हैं. exactly. तो कुल मिला के कहें कि अगर हमारी तर्ज जिंदगी में बेहतरी आए तो ये हम सोचे कितना हम किसको कंट्रोल कर पाएंगे. और कारण है वो सिस्टिक डिजीज वगैरह वो किसी को मार जाए. लेकिन मैं इसका बोल रहा हूँ क्योंकि मम्मी की छुट्टी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया. खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल
बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। 60 to 70% तो ये दो कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। अगर हम शुगर को ही एक तो उससे बचे ना हो जाए, अगर लाइफस्टाइल चेंज करें, डायबिटीज ना हो, बेस्ट इज प्रिवेंशन। जी जी। ठीक है। सेकंड इज ब्लड प्रेशर ना हो अगर लाइफस्टाइल चेंज। थर्ड इज अगर ये हो गया किसी को, ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हुआ तो उसको दवाई लें, रेगुलरली लें, जो डॉक्टर साहब दवाई बोले वही खाए, मशवरों पे अमल हाँ बिल्कुल मशरूम पे, और कंट्रोल में रखे ब्लड प्रेशर, फिर चांस है किडनी बचने की। अगर ब्लड शुगर है किसी को, उसकी जो दवाई लिखें डॉक्टर साहब, पर्टिकुलर दवाई वो खाएं, जो परहेज लिखें उस पर अमल करें तो किडनीज बच सकती हैं। ना परहेज करें किसी भी हाल में, या दोनों। आमतौर पे जिसको डायबिटीज उसको ब्लड ये शुगर भी होता है, डायबिटीज के साथ सॉरी उसको ब्लड प्रेशर भी होता है, क्योंकि इसमें तो यूजुअली कॉमन कॉज जो फैक्टर्स हैं वो सेम है और कॉन्सिक्वेंसेस भी हाँ, सेम ही होते हैं। consequences सेम है। इसलिए अगर लाइफस्टाइल चेंज करे तो हो सकता है दोनों से भी बचे जी जी जी। और किडनीज भी बच जाएं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, नाज़रीन आप भी इसको अपने जहन में मुनक्श करें कि जब तक न हमारा तर्ज ज़िंदगी सेहतमंद हो तब तक ये ऐसी प्रॉब्लम्स तो उठती रहेंगी, और बेहतर है प्रिवेंशन, बेहतर है बनिस्बत इलाज के। तो अपनी तर्ज ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो असलम साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। आप क्योंकि डायलिसिस के शोबे को देखते हैं, टेक्निकल ऑफिसर है, तो प्री डायलिसिस फेज़ पे पहले डिस्कस करें हम। तो जब आपके पास एक पेशेंट आता है डायलिसिस की, तो उस वक्त कौन से चैलेंजेस आपके दरपेश होते हैं, क्या क्या तरीके? देखिए आसिफ साहब, ये जो डायलिसिस है ये तो अब ऐसा है कि ये रेगुलर बेसिस पे करना होता है पेशेंट्स को। जो भी हमारी बीच में कितना गैप, अभी कितनी हम फ्रीक्वेंसी? इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्रॉनिक रिनल फेलियर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि एक्यूट रिनल फेलियर में कुछ डायलिसिस के बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है, तो उसकी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। जो क्रॉनिक, जिनका दायमी तकलीफ होती है, उनको रेगुलरली, जैसे अपना गुर्दा हर रोज काम करता है, पूरी जिंदगी काम करता है, इसीलिए इसी तरह हमें उन पेशेंट्स में पूरी लाइफ, जब तक उनकी लाइफ है वहाँ तब तक उनको हमें ये डायलिसिस प्रोसीजर देना है। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट पे कितना वो कैटाबॉलिक रेट क्या होता है, बाकी जो फैक्टर्स होती हैं उसके हिसाब से। वो तो मिनिमम 2 बार हफ्ते में ये डायलिसिस करनी होती है। अच्छा, तो कितने वक्फे का ये, मतलब कितना टाइम लगता है एक प्रोसीजर डायलिसिस? 1 प्रोसीजर टेक्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स। 4 आवर्स। तो हफ्ते में आपको 8 घंटे देनी ही देनी? बिल्कुल देनी है, और किसी पेशेंट में 3 बार भी देनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस। तो इसमें मैं ये बताऊं कि सबसे पहला ये चीज़ है कि पहले अवेयरनेस नहीं थी पेशेंट्स में, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड डायलिसिस इन आवर इंस्टीट्यूट इन 83, तो 1-2 डायलिसिस होती थी उन दिनों, तो वी हैड ओनली 1 or 2 मशीन्स। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सिनेरियो क्या है कि कितनी बढ़ रही है ये डिजीज, उसी हिसाब से हमारा जो इंस्टीट्यूट में इसका सेटअप है वो भी बढ़ता गया। तो दिस टाइम we have almost 10-12 machines in our dialysis unit, main dialysis unit, and then we have 2 machines in सीको एंड 2 मशीन। एंड रिसेंटली मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कोविड की वजह से हमारा प्रॉब्लम हो गया, तो ऑलमोस्ट वादी में अब हर जगह डायलिसिस अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, प्राइवेट सेंटर्स में डायलिसिस। तो ये ज़्यादा अब इंस्टीट्यूट पे डायलिसिस के लिए डिपेंड नहीं है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, आपने डोर स्टेप्स तक ला दिया है। जी जी। लेकिन जो प्रॉब्लम है इसमें वो ये है कि जैसे हमारा कोविड हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो प्राइवेट सेंटर्स है या डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे वहां पे प्रॉब्लम हो गई उनको कि दे कुड नॉट प्रोवाइड डायलिसिस, वी हैड टू बी एट द ब्रांच। उसमें हमारा सारा जो है वो तो इंस्टीट्यूट पे आ गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बगैर किसी भी जगह वादी में हमारी ये जो मुझे कोविड मेहनत रही आपकी बहुत सारी। आई एम हाईली थैंकफुल टू माय टेक्निकल स्टाफ जिन्होंने रात दिन पूरा काम किया। वी आर प्रोवाइडिंग डायलिसिस, जो हमारा इन्फेक्टिव डिजीज ब्लॉक है वहाँ पे हमें अलग इसके लिए सेटअप। चलिए ये तो बात हुई प्री डायलिसिस फेज की कि आप किस तरह से पेशेंट को तैयार करते हैं और किस कंडीशन में पेशेंट आपके पास आता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, जो एक वैसे तो आम आदमी, मेरे जहन में भी कई बार ये खलिश होती है कि कैसे पता चलेगा, व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ किडनी एलिमेंट? एक आम इंसान को जो पढ़ा लिखा ना हो उसको कैसे पता चले? जो अलामात है किडनी, मैं पहले बताऊंगा अलामात क्या है। वो है, सपोज किसी को पेशाब करता है दिन में 4 बार या 5 बार, इसमें चेंज हो गई, वो अब ज्यादा उठने लगा, ज्यादा हाँ मतलब ज्यादा बार जाने लगा उसको, या कम हो गया, दोनों सूरतों में इट कुड बी ये सिम्टम टुवर्ड्स, या अगर वो पेशाब कितना करता है 24 घंटे में, रफली अगर आप 2 लीटर 2.5 लीटर करते थे, अब आपको लगता है कि आपने नोटिस किया कि
जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, या ज्यादा हो रहा है, बोथ कैन बी, ये कि किडनी डिजीज के रिलेटेड। या सेकंड, अगर आपको लगा आप पेशाब कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ जाग सा लग रहा है, इट कुड बी ए साइन कि शायद इसमें प्रोटीन आ रहा है, अच्छा, फोम बनना, फोम सब बनना, ये। थर्ड, अगर आपको लगा कि खून आ गया, वो तो विजिबल है, तो वो है ही कि कहीं किडनीज में ही तो नहीं है कुछ, अगर हो गया क्रिस्टल्स की वजह से स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं। जी जी। थर्ड है, अगर आपको लग गया, कोई घर वालों ने बोला कि आप तो ठीक थे, ये सुबह से आपको ये सूजन क्यों आ गई, माथे पे सूजन सी लग रही है, अच्छा अच्छा, इट कुड बी ए साइन कि इसी वजह से आपको स्वेलिंग लगी, ये हो रहा है, या कोई पेल हो रहा है, अच्छा अच्छा, हम दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये क्यों, थकावट आ रही है जो नहीं थी, ये थकावट कहाँ से आ गई, मैं ये काम करता था, ये मुझे आधा घंटा में खत्म हो, आज तो 1 घंटा लग रहा है और मैं थकावट हो रही है, ये थकावट होना, सांस बढ़ना, ये चीजें हो सकती है किडनी की वजह से भी, क्योंकि मैंने कहा ना ये कंट्रीब्यूट करता है खून बनने में भी, मे भी खून कम हुआ है और कंट्रीब्यूशन है किडनी फेलियर, एग्जैक्टली, फटीग आ रहा है। हाँ जी, फटीग हो रहा है। अगर ब्लड प्रेशर सडनली आपने नोट किया कि ब्लड प्रेशर हाई है, किडनी में कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड प्रेशर रखने के लिए भी, लेकिन किडनी इन्वॉल्व होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, किडनी फेल होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये वो बोलते हैं ये बंदे जिनको किडनी फेल होता है, हमें पेन है यहाँ वहाँ, ये एक हो सकता है उसकी अलामत। लेकिन बदकिस्मती इसमें ये है, अलामत तब होते हैं जब ये ऑलरेडी किडनी पेशेंट का तकरीबन 50% डैमेज हो चुका होता है। हम किडनी कितनी हद तक डैमेज हुई है इसको हम स्टेजेस में लेते हैं, 1 to 5 स्टेजेस, मतलब कितना डैमेज, हम बोलते हैं कि 90 to 120 हम लेते हैं, चलो स्टेज 1 मैनेजेबल है, मैनेजेबल है, इसमें डैमेज है थोड़ा, मान लीजिए कुछ है स्ट्रक्चरल डैमेज, लेकिन फंक्शन नॉर्मल है। 60 to 90 हम बोलते हैं ये सेकंड आ गया, इसमें थोड़ा सा फंक्शन कम हो गया। तो इसी हिसाब जब 5 स्टेज आता है, स्टेज नंबर 5, उसका मतलब है कि ये पहुंच गया उस स्टेज पे कि ये तकरीबन 15 पे पहुंच गया, इसका जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, जो 90 to 120 हो ना वो 15 पे पहुंच गया। तो मतलब अगर उसके बाद हम बोलते हैं कि इसको आप सपोर्ट कीजिए, जब ये बिल्कुल ही हो सकता है 5 स्टेज के बाद आ गया वो से एंड स्टेज रिनल डिजीज 10 पे पहुंच गया कि अब इसको खुद किडनीज पे या दवाई से है यहाँ तक चला नहीं होगा, अब डायलिसिस से ट्रांसप्लांट। अच्छा, तो दैट मींस कि असलम साहब के पास तब आप पेशेंट को भेजेंगे जब स्टेज 5 क्रॉस हुआ हो। या एग्जैक्टली जी जी। और ये नाज़रीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज 3 तक तो यूजुअली ये आते ही नहीं है। 90% जो सीकेडी पेशेंट है, पहले मैं यहाँ दोबारा बताऊं, 10% ऑफ पीपल हैव सीकेडी। अगर हम यहाँ 100 बंदे हैं यहाँ पे 100 में 10 को है सीकेडी, और उसमें खाली 7% को पता ही नहीं है, मतलब इन 10% में 7 को पता ही नहीं, मतलब 90% लोग हैं जिनको ये अलामत ही नहीं है। ठीक है, तो अलामत स्टेट होते हैं जब 50% डैमेज हुआ है तब हो जाता है। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट है कि हर एक बार जांच करे, अगर वो नहीं है कम से कम उन बंदों को तो जरूरी जांच करनी चाहिए जिनमें ज्यादा चांस है किडनी फेलियर, या जिनमें ज्यादा, वो उनमें आता है वही जो मैंने कहा, somebody जिसको डायबिटीज है, किसी को जिसको ब्लड प्रेशर है, या किसी को फैमिली में कोई किडनी की तकलीफ है, कोई किसी को सिस्टिक डिजीज या कोई फैमिली की तकलीफ जिसमें किडनी इन्वॉल्वमेंट हुई है, उस जो फैमिली दूसरा मेंबर है उसको भी ये जांच उसके चांसेस होते हैं किडनी फेलियर होने के, या कोई दवाई ले रहा है किसी डॉक्टर साहब की पेन किलर वगैरह ले, उसके चांसेस होते हैं, या अगर कोई बंदा ऐसा जिसको ऑलरेडी हार्ट की कोई तकलीफ है उसको करना चाहे जांच, उसको जांच करनी चाहे, या और कोई जैसे किसी को ऑलरेडी हु इज ओबेस, जो मोटापन जिसको ज्यादा है उसको ज्यादा चांस है, कोई स्मोकर है उसकी रिस्क फैक्टर ज्यादा बनता है किडनी इन्वॉल्वमेंट में, तो उसको जांच करें। वो जांच में उतना ज्यादा तो लगता नहीं है, सिंपल यूरिन टेस्ट, जगह जगह दस्तयाब है, सिंपल यूरिन टेस्ट और KFT जो हम बोलते हैं यूरिया क्रिएटिनिन, 2 टेस्ट हैं जिससे डॉक्टर साहब को सब पता चलेगा किडनी इन्वॉल्व है या ना, और किस कदर इन्वॉल्व है। मैं भेजूं इसको सुपर स्पेशलिस्ट के पास है अभी मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो 5 स्टेज का आपने जिक्र किया, फॉर एग्जांपल पहले स्टेज में आपके पास कोई पेशेंट आया, कोई जागरूक पेशेंट है, कोई बेदार पेशेंट है, तो अक्सर ये शिकायत हमें देखने को मिली, शिकायत भी नहीं कहेंगे, गिला करते हैं पेशेंट्स की, जी डॉक्टर साहब के पास गए, एक डॉक्टर साहब ने कहा जी आप गोश्त बंद कर लो, दूसरे ने कहा आप जी वीट बंद कर लो, किसी ने कहा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक बंद कर दो, किसी ने कहा प्रोटीन इंटेक को ड्रास्टिकली रिड्यूस करो। तो क्या कोई यूनिवर्सल कोड है डाइट का? देयर इज अ यूनिवर्सल कोड। देखो हम रेस्ट्रिक्शन करते हैं किस हद तक किडनी में डैमेज है, कौन सा स्टेज है, ठीक है।
रफली हम बोलते हैं जब CKD हो गया किसी को, अब हमें प्रोटीन ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना है। अच्छा, प्रोटीन की मिकदार कम करनी हाँ, है। प्रोटीन थोड़ा कम करना पड़ता है। हमें मतलब हम लेते हैं 0.6 to 0.8 पर kg के हिसाब में, वेट के हिसाब से भी ये कैलकुलेट करते हैं, कैलोरीज भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कितना देना है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ठीक है, नमक हम बोलते हैं कम करो। जी जी। हाँ, और ये बोलते हैं कि फैट्स कम कर लो ताकि वो बाकी रिस्क फैक्टर ना बढ़े। ठीक है, तो ये पेशेंट की कंडीशन को देख के हम बोलते हैं कितनी रेस्टोरेंट। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक ज़िम्मन बताऊँ एक बात, बदकिस्मती ये हमारा जो है ना, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, या तो वो दो किस्म के हैं, या तो वो बहुत ज्यादा परहेज करते हैं जिसमें भी नुकसान है, गैर जरूरी हो तब तक वो मैल नरिश्ड होते हैं, जिससे और डैमेज होता है, या तो वो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं जिससे और ज्यादा किडनी डैमेज। तो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच वाला तबका उनको गायब वो है। लेना चाहिए जो डॉक्टर साहब ने बोला वो फॉलो कर। जी जी। अच्छा, असम साहब आपकी तरफ आता और हूं। मैं काफी एक देर- सेकंड जस्ट जी, सॉरी, जी, मैं एक भूल गया, जी, एक जी, जी। जो इम्पोर्टेंट है इनको कि पानी लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, पानी वो का important है। लास्ट में भी वो बोला, मैं मैसेज में सवाल आपको- में पूछने वाला भी ठीक था। है, हाँ। तो असम साहब आप काफी देर से आप सब्र किए हुए हैं, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। अब स्टेज 5 क्रॉस हो गया है, डॉक्टर साहब ने आपकी तरफ पेशेंट भेजा, आपने प्री डायलिसिस एनालिसिस की, उसका एवेल्युएशन किया, फाइनली ही इज ऑन द बेड टू डू द डायलिसिस। तो उसके बाद चैलेंज के दरपेश, पोस्ट डायलिसिस क्या चैलेंज? पहले मैं ये थोड़ा सा ऐड कर जी, दूं जी, कि please। जैसे डॉक्टर साहब ने पूरी वजाहत की कि क्या क्या ये होती है, इनकी अलामात क्या होती है, तो मैं अपने शोबे से मुतल्लिक कुछ बातें बताना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे पेशेंट आता है, इनने जैसे बताया कि जो टाइम पे पेशेंट नहीं आता है, वो जनरल अवेयरनेस लोगों में अभी है नहीं। जी जी। क्योंकि ये जो किडनी फेलियर वाला पेशेंट होता है, इसको मैनेज करना होता है स्टेज वाइज। उसमें हमारा डायलिसिस का भी ताल्लुक है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम ये जो एक वजू है हमारे जिस्म में जिसका मुतबादिल अभी दस्तयाब है। बिल्कुल पूरी तरह से अगर डायलिसिस पे पेशेंट रहे तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो क्या ऐसा है असलम साहब कि पेशेंट आपके पास आया, आपने डायलिसिस की, फिर कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स है जिस पे डायलिसिस उसके बाद स्टॉप हो जाए? नहीं, इसमें ऐसा है कि जो डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि एक्यूट रिनल फेलियर जो होता है, जो आर्जी तौर पे गुर्दा काम करना बंद कर उसकी देता है, 2-4 बार उसका डायलिसिस डिपेंड करता है, 2-4 बार या जितनी भी, जब तक वो उसका गुर्दा फिर से खुल जाता है तो फिर उसका डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इज नॉर्मल में। लेकिन जो जिसका दायमी ये गुर्दा खराब हो गया है तो उसमें तो पूरी जिंदगी के लिए डायलिसिस पे रहना है। तभी तो इसमें एक वो जनरल अवेयरनेस चाहिए कि ये जो डिजीज है, पेशेंट को ये देखना है कि अब मुझे ये तकलीफ हो गई है, आई हैव टू प्लान थिंग्स। उसमें यह है कि उसकी बहुत सारी जो इक्तिसादी वजूहात भी होती हैं जो यहाँ पे हम नोट्स कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक रेगुलर प्रोग्राम है, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक उसको डायलिसिस करवाना है, तो इसके लिए उसको अपना प्लान करना है कैसे मैं ये चीज़ें ठीक करूँ। कि इसमें एक बड़ी बदकिस्मती है यहाँ पे कि बहुत सारे जो NGOs हैं वो ज़्यादा इसमें अभी नहीं आए हैं आगे, हेल्प नहीं क्योंकि ये जो है ये एक कॉस्टली प्रोसीजर है। अच्छा। हफ्ते में और ये ऐसा नहीं है कि किसी को पेस मीटर लगाना है कुछ है तो एक बार लगा दिया तो पेशेंट डाल दिया हो तो गया, लेकिन ये रेगुलर Recurring है बिल्कुल। अभी पेशेंट कुछ पैसे वैसे अरेंज करता है तो ये 2-4 डायलिसिस कर दी तो उसके बाद बेचारा फिर फंस जाता है। अरेंज करने तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो अभी तो हमारे इंस्टीट्यूट में वी हैव बीन प्रोवाइडिंग फ्री डायलिसिस फॉर लास्ट सो मेनी डिकेड्स। आई टोल्ड यू हमने तो इसमें कोई दायमी पेशेंट्स भी हैं जिनको आप रेगुलरली फ्री प्रोवाइड करें? पहले तो हम ऐसा करते थे कि उसको हम मेंटेनेंस डायलिसिस बोलते हैं। जो पेशेंट पूरी तरह जिसका कुल्बे खराब है तो उसको डायलिसिस पे रखा जाए तो उसको मेंटेनेंस डायलिसिस बोलते हैं। वी वर प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस डायलिसिस। रिसेंटली हमने उसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दिया क्योंकि अब तो ये डायलिसिस बहुत जगह अवेलेबल है। जी जी। तो इंस्टीट्यूट चूंकि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। वहाँ पे तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जो भी बाहर जिनको भी जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम किसी भी डायलिसिस सेंटर में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वगैरह, तो अल्टीमेटली दे कम टू इंस्टीट्यूट। जी जी। सो वी हैव रिजर्व्ड आवर डायलिसिस यूनिट फॉर दोज पेशेंट्स Who are really in the need? इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक तो हम मेंटेनेंस देते हैं उनको जो हमें पेशेंट है जिनको एवेलुएट करके हम ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं,
उनका नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। सभी को हम नहीं ला रहे हैं मेंटेनेंस पे। तो सिलेक्टेड वन है जिनको हाँ, आप अपने जिनका जो पैमाने क्यू में आपके- है, जी, जी। हु आर नियरर टू गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, वो मेंटेनेंस पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत 2-3 सवाल जो है अहम रह गए क्योंकि मेरा प्रोग्राम का वक्त जो है जी, जी, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। पहला तो ये कि क्या टर्मिनली इल किडनी पेशेंट जो है, जिनका अभी असलम साहब जिक्र कर रहे थे कि उनको दायमी डायलिसिस हो, तो वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का कोई ऑप्शन हमारे पास आता है? डेफिनेटली फर्स्ट मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑप्शन है इन पेशेंट्स के लिए जिनका टोटल डैमेज किडनी एंड स्टेज रिनल डिजीज है। फर्स्ट एंड प्रेफरेबल ऑप्शन इज गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, ठीक है, और उसमें भी कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी? नहीं वो तो देखेंगे, वो तो देखनी पड़ती है। जी, जी। वो नंबर 1 ऑप्शन है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको लिए ट्रांसप्लांट ठीक नहीं है। सपोज किसी किडनी फेलियर ज्यादा चांसेस होते हैं हायर एज ग्रुप में। जी, जी। अगर किसी की एज है 70 इयर्स, उसको किडनी फेलियर है, अब उसके लिए ये भी फिजिबल नहीं है उसको किसी नॉर्मल पेशेंट का गुर्दा ले और दे, क्योंकि यू हैव टू सी अदरवाइज लाइफ स्पैन कितना Exactly. है। तो उसके लिए तो डायलिसिस विल बी अ बेटर Dialysis चॉइस, will be viable क्योंकि option. डायलिसिस में भी पीपल हैव लिव्ड फ्रॉम 10 इयर्स तो होते हैं, दे कैन लिव इवन फॉर 20 इयर्स दे हैव लिव्ड। सो उसके लिए वो है। लेकिन या किसी को हार्ट की ऐसी तकलीफ है कि उसके लिए ये नहीं हो, ये देखना पड़ता है कि, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमेशा रहता है किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जिसके साथ हमारा ताल्लुक कहीं ना कहीं बलाए रास्त या बिलवास्ता तौर पे है, वो है कि हमारे जवानों में, यूथ में अब बॉडी बिल्डिंग की ट्रेंड बढ़ गई है। जी, जी। और जिम्स में आप देखेंगे कि प्रोटीन इनटेक का जो आर्टिफिशियल वे प्रोटीन है या और कोई चीज़ है, वो कितना हेल्दी प्रैक्टिस है? मैं बताऊं आपको सच्ची में, वी हैड रिसेंटली आल्सो सम बॉयज लाइक दिस। ये बहुत ही मिसयूज हो रहा है। एक तो उनको कुछ बॉडी सप्लीमेंट्स वहाँ दे रहे हैं, उनके कंटेंट इसका पता नहीं है, उसमें कुछ होते हैं ये, मतलब वी हैव टू सेंड सर्टन ये कंटेंट्स फॉर एनालिसिस, अभी पता नहीं, क्योंकि वो लेते रहे। जब हम इनकी हिस्ट्री लेते हैं किडनी फेलियर कैसे हुआ, देन दे कम अप कि हम ये ले रहे थे। अच्छा, So तो इसलिए- टोटली हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है? नहीं, ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं, ये लेना है। अगर इनको लेनी है, प्रोटीन लेनी है, दे हैव टू टॉक टू द न्यूट्रिशनिस्ट, दे हैव टू टॉक टू द डॉक्टर या उनके कि मैं natural कितना alternatives भी दस्तयाब है, आप कितना क्या excellence- लेना है। ये नहीं कि आप मतलब जितना जरूरत है उतना ही तो लेना है ना। ये अल्टीमेटली प्रोसेस तो तो किडनी को ही करना है। किडनी पे unnecessary ज्यादा burden आ ब्रंट तो इसी से पड़ता है। जी, जी, जी। किडनी जो हम कहते हैं किडनीज में प्रोटीन का ब्रंट तो ऑलटुगेदर हम मान के चलें कि जो ये जो आउटसाइड प्रोटीन इनटेक होता है खासकर जिम सेंटर्स में वगैरह, इस प्रैक्टिस को रेगुलेट किया जाए और इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड। रेगुलेट। और मेरा ख्याल ये भी है कि इस पे लेजिस्लेशन भी बनना चाहिए। सर मैं एक चीज़ थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, ये जो क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है, अब तो हद ये हो गई है, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया। अब तो ये हद हो गई है कि हमारा एक ट्रांसप्लांट पेशेंट था, he was doing well after transplant, but he once again he started जिम एटसेट्रा etc. and the result उसका ग्राफ जो है जी वो जी। fail अब हो गया। बिल्कुल ये तो बिल्कुल इसमें- अनहेल्दी प्रैक्टिस है और इस पे जितनी जल्दी हो सके कदम लगाने के। मेरे पास कुछ 1 मिनट से भी कम टाइम है। डॉक्टर साहब, अब चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई बंदा प्रिपेयर होता है, तो उसके लिए कौन से पैरामीटर्स आप देखते हैं? एज, सेक्स, ये कंपैटिबिलिटी तो देखो फैक्टर्स? नॉर्मली 18 to 65 हु इज हेल्दी ही कैन डोनेट। और कंपैटिबिलिटी के लिए कौन से क्राइटेरिया है? उसमें यूजुअली हम देखते हैं ये तो ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ही हाँ, हालांकि आजकल तो जो कंपैटिबल नहीं हो वो भी होता है, लेकिन अभी हमारा यहाँ इट इज गोइंग टू स्टार्ट इंशाल्लाह इमीडिएटली। इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और जाते जाते आपका एक पैगाम 5-10 सेकंड्स की हमारे नाजरीन के नहीं, नाम। मेरी मैसेज तो यही रहेगी, एक तो पानी खूब पी लिया करो। जी जी। दूसरा ब्लड प्रेशर किसी को दवाई लो, जो डॉक्टर साहब ने दवाई ली रेगुलरली लो। ब्लड शुगर है उसको तो कंट्रोल में रखो। थर्ड, डेली एक्सरसाइज, डेली वर्जिश करो। जी, जी। हेल्दी डाइट खाओ, हरीली सब्जी खाओ, फ्रूट खाओ। जी जी। Your- तो आप ये दोनों ऑन द हज़रात काउंटर दवाई मत जी खाओ। जी जी, आप दोनों हजरात हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगले शुमारे तक के लिए अल्लाह निगहबान।